Hello my dear students, welcome back to our channel MMC, Mathematics Monitoring Center, which aims to make mathematics a joyful subject for the students. I hope you liked the previous video. So today I have come up with a video on the topic that was requested by one of our follower student who commented on our last video to discuss some of the important topics of the subject M3, which is the part of BTech. But this video will also be useful for the commerce students, BBA, BCom, etc. So today in this video, I will be discussing the topics moment, skewness and kurtosis. So let us start. So as I told you that I will be discussing three topics. So let us start with the first topic, that is moments. So moments क्या है? It is a quantitative measure that describes the specific characteristics of a probability distribution. If you know about the probability distribution, तो बेटा probability distribution के बारे में और चीजें पता करने के लिए हमारे पास क्या है? Moments. So moments एक quantitative measure है जिसकी मदद से हम probability distribution के बारे में specific चीजें को पता लगा सकते हैं, जैसे कि skewness and kurtosis. अब बेटा skewness क्या है? What is skewness? It measures the degree of symmetry. So I hope you know what is symmetry. For example, this is a marker. I divide this from the center. So I will be getting equal piece to the left and equal piece to the right. So that means this marker, if divided, if cut from the center, will be divided into two equal parts. So that means there is a symmetry. For example, if if this is a curve, I divide it vertically from the center so that I get equal portion to the left and equal portion to the right, right? So ये क्या है? ये हम किससे पता चला सकते हैं? Skewness से. So it measures the degree of symmetry, whether the given distribution is symmetrical or whether the given distribution is asymmetrical, right? So the next thing which we can get to know about the probability distribution with the help of moments is kurtosis. So what is kurtosis? Kurtosis क्या होता है बेटा? It measures the degree of peakness of the distribution. हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी कर्व है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व है, वो पीक्ड है. पीक्ड मीन्स लाइक दिस. For example, this is a curve, highly peaked. This is a peaked, right? And whether it is normal curve or whether it is flat, right? तो ये तीनों चीजों के बारे में हमें कौन बताता है? Kurtosis. So moments क्या है बेटा? Moment एक क्वांटिटेटिव मेजर है जिसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीजों का पता लगा सकते हैं, जैसे कि जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. सो स्क्यूनेस मेजर्स द डिग्री ऑफ सिमेट्री, whether the curve is symmetrical or asymmetrical, and kurtosis it measures the peakness or flatness of the curve. So whether the R distribution curve is flat, peaked or normal, right? Next देखते हैं क्या लिखा है. Moments can be calculated by raising the data values to a particular power and can be used to calculate the mean and the variance. So, moments को किस तरह से निकाला जा सकता है? There will be formulas. So, moment can be calculated by raising the data values to a particular power. We have to raise the power of the data values that we will be discussing in our further part. And we can calculate the mean and variance from the formulas of moments that we will be discussing. So first is, there are three different methods of calculating moments. Number one, moments about mean, which is known as central moments, right? So the first we will be discussing is moments about mean, that is central moments. It is denoted by mu. So to begin with this, let us understand the formula first, right? So let x1, x2, x3, so on up to xn be the n observations with mean x bar. Then the rth moment about the actual mean is given by, right? Okay, before I discuss this formula,
you should understand about series. There are three types of series in statistics, that is individual series, discrete series and continuous series. If you don't know about this, there is a video on my channel about arithmetic mean, the first video I guess, arithmetic mean. वहां पे आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं. वहां पे मैंने अच्छे से बताया है कि what is individual series, what is discrete series and what is continuous series. So for your reference, I will share the link also and I'll give the rough idea. First one is individual series. इंडिविजुअल में बेटा क्या होता है, सिर्फ x की वैल्यूज गिवन होती हैं हमारे पास. इन द डिस्क्रीट सीरीज वी विल बी गिवन विद द वैल्यूज ऑफ x की भी वैल्यूज गिवन होंगी एंड द फ्रीक्वेंसी आल्सो. अलोंग विद द x देयर विल बी फ्रीक्वेंसी आल्सो. बट इन द कंटीन्यूअस सीरीज देयर विल बी इंटरवल्स. क्लास इंटरवल्स विल बी गिवन अलोंग विद द फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जांपल intervals like this 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and the frequency will be given, right? So there will be different formulas for individual series, discrete and continuous series. So discrete series and continuous series are also known as frequency series, frequency distribution series, right? So we are discussing movements about mean, which is also known as central movements. It is denoted by mu. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं. फॉर एग्जाम्पल x1 है, x2 है, x3 है, सो ऑन अप टू xn है. एंड मुझे इसका rth मोमेंट निकालना है, राइट? rth सेंट्रल मोमेंट निकालना है. द फॉर्मूला विल बी, एज आई टोल्ड यू दैट इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल म्यू. सो बट वी आर कैलकुलेटिंग कौन सी मोमेंट? rth मोमेंट. सो एज द सफिक्स आई हैव रिटन r. सो म्यू r विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला समेशन x माइनस x बार raised to power r. तो यहाँ पे मैंने बताया था we have to raise the data values to a particular power. So here you can see if you want to find the rth moment you have to raise the data values to the power r divided by small n, where small n क्या है? The number of values. यहाँ पे मैंने कितनी values ली हैं? 1, 2, 3 so on up to n. So I have divided by n. This formula is for individual series and r can vary from 1, 2, 3, 4. So in general we calculate only 4 central moments, mu1, mu2, mu3 and mu4. So now we will find mu1, mu2, mu3 and mu4. So beta, we want to find mu1. We want to find mu1. अब mu1 कैसे निकलेगा? We will put r is equal to 1 for first central movement. Put r is equal to 1. So we will put r is equal to 1. So it becomes mu1 is equal to summation x minus x bar raised to power 1 upon n. So power 1 means we don't need to write even 1. That is understood that the power is 1. But mu1 will be 0. So anyone who knows why I have written mu1 will be 0 and this value will be 0 always. हमेशा हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है. mu1 will be 0 always. Anyone who knows the reason, please kindly comment. So mu1 is equal to 0 always. I will tell you also why. Because it is the property of arithmetic mean that if mean is subtracted from data values, then its summation will always be 0. That is कि अगर आप x में से x बार मीन्स हर डाटा वैल्यूज में से मीन को माइनस करेंगे और उसका सम करेंगे
आपका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, 0। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन। मैं दोबारा से समझा देती हूँ अरिथमेटिक मीन की क्या प्रॉपर्टी है। अरिथमेटिक मीन कहता है कि भैया आप अगर मेरे डाटा वैल्यूज में से मुझे ही माइनस कर दोगे, आप मेरे डाटा वैल्यूज में से दैट इज एक्स में से, हर एक्स में मतलब हर डाटा वैल्यूज में से अगर आप मुझे माइनस कर दोगे तो आप टोटल करेंगे तो मैं हमेशा आपको टोटल क्या दूंगा, 0, राइट। सो μ1 फॉर्मूला इज समीशन x माइनस एक्स बार अपॉन n, बट अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी समीशन x माइनस एक्स बार इज 0, so 0 divided by n is 0. So μ1 we don't need to calculate, μ1 will be 0 in all the cases. So μ1 is equal to 0 always. So let us find second central moment. To find second central moment, put r is equal to 2. So हम r को 2 put करते हैं, we will be getting μ2 is equal to summation x माइनस एक्स बार। अब कौन सा सेंटर मोमेंट काउंट करें हम, 2, सो रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय n। सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर इंडिविजुअल सीरीज। सो μ2 is equal to summation x minus x bar raised to power 2 upon n. So if any one of you know that this formula is also the formula of a quantitative measure, that is variance, which is denoted by sigma square. So μ2 आप लर्न कर सकते हैं, μ2 एक तरह से हमारा क्या होता है, वेरिएंस ही होता है। So if any one of you don't know how to calculate the variance, there is also a video I have made on this topic. You can search on our channel and you will get the video on variance also. So μ2 का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, वेरिएंस के बराबर। So let us now find the third central moment. So to find third central moment, put r is equal to 3, right? So put कीजिए μ3 will be summation x minus x bar की power 3 upon n, and this is equal to skewness, means it tells us about the symmetry or asymmetry. तो μ3 की वैल्यू से मुझे क्या पता चलेगा बेटा, द वेदर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिकल और asymmetrical. So let us now calculate the fourth central moment. So put r is equal to 4. So μ4 will be summation x minus x bar की power 4 upon n, and beta this tells you about the curtices which we will study in detail. μ4 will be telling us about whether the frequency distribution curve is highly peaked, it is normal, or it is totally flat. So this is all about the moments, central moments, whose formula for individual series is given by mu r, which is summation x minus x bar raised to power r upon n. This is for individual series only. So let us discuss the formula for discrete or continuous series. The formula will be, अब देखो discrete और continuous series individual series से कैसे differentiate की जाती है, because of the frequency. Individual में we are given with the values of x only, but in discrete and continuous we are given with the values of f only. So there will be a difference of f only. So mu r in this case will be summation f x minus x bar raised to power r upon summation f. Summation f can be denoted by capital N also, right? So this is the formula for central moments for the case discrete and continuous series, right?
So let us now discuss the second moments, which is movement about any arbitrary value. So the second है हमारे पास movements about any arbitrary value. Movements about any arbitrary value. Why there is a need to calculate movements about any arbitrary value? For example, any arbitrary value, for example, A. Sometimes it is difficult to calculate the arithmetic mean. So उन cases में So उन cases में we will firstly calculate the movements about any arbitrary value A. Then we will convert it to the central movements, right? So movements about any arbitrary value is denoted by mu dash. So if there is x1, x2, x3, so on up to xn, there are n values, then the rth moment about any arbitrary value is given by mu dash r is equal to summation x minus. वहां पे क्या था बेटा, वी आर कैलकुलेटिंग द मूवमेंट्स अबाउट द मीन. सो वहां पे हम क्या कर रहे थे, x माइनस द मीन. बट हियर वी आर कैलकुलेटिंग द मूवमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू. सो आई होप आप समझ ही गए हैं. सो इट विल बी x माइनस a रेज टू पावर r अपॉन n. अगेन where r can be 1, 2, 3, 4 in general, and this is the formula for individual series, right? So इसमें भी आप r की वैल्यू 1, 2, 3, 4 पुट करके आप फर्स्ट मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू, सेकंड मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू, थर्ड मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू, फोर्थ मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? जैसे कि मैं एक निकाल देती हूँ बेटा, म्यू डैश 1 विल बी समीशन x माइनस a रेज टू पावर 1 अपॉन n. इसी तरह से you can put r is equal to 2, r is equal to 3, r is equal to 4, and you can find mu 2 dash, mu 3 dash, and mu 4 dash, right? So this is about movements about arbitrary value capital A, which is denoted by mu dash. So its formula is given by mu dash r is equal to summation x minus a raised to power r upon n for individual series. But for discrete or continuous series, the formula of mu dash r will be summation f x minus a raised to power r upon summation f, where again r can be 1, 2, 3, 4. So in general we calculate only 4 movements, 4 central movements, and we can also find 4 movements about any arbitrary value a. So now we will be discussing the formula for third, that is the movements about the origin. So beta, third movement is movements about origin, right? So it is denoted by nu, the symbol nu. Nu के साथ इसको denote किया जाता है. So for example, if we have again x1, x2, x3, so on up to xn, there are xn values, then the rth movement about origin, will be given by mu r is equal to summation x minus, I hope you know यहाँ पे क्या आएगा. अब यहाँ पे हम किसके अराउंड कर रहे हैं, ओरिजिन, दैट इज मूवमेंट अबाउट 0. सो दैट इज x माइनस 0 डिवाइडेड बाय n रेज टू पावर r, जो बेटा बन क्या गया, समीशन x रेज टू पावर r अपॉन n. अगेन दिस फॉर्मूला इज फॉर इंडिविजुअल सीरीज. ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, when the series is individual, and you can calculate nu1, nu2, nu3, nu4 by putting r is equal to 1, 2, 3 and 4. And for discrete and continuous series, the formula will be nu r is equal to summation f
x minus 0 raised to power r upon summation f. That is summation f x raised to power r upon summation f. This is the formula of moments about a region for the case discrete and continuous series. So this is all about the moments about mean, that is the actual mean, which we have discussed the very first step, that is moments about mean, that is central moments. Then we have discussed the formulas for moments about any arbitrary value a, and then moments about a region, that is moments about 0. So these are the formulas which we will be using to solve any numerical problem, right? So I have brought one question, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे हमें फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना ही नहीं आएगा. सो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मैं फॉर्मुलेस कराऊं और आपको क्वेश्चन ना सॉल्व करना कराऊं, क्योंकि बेसिकली बच्चों को डिफिकल्टी क्या आती है कि फॉर्मूला तो पता होता है बट फॉर्मूले की कैलकुलेशंस कैसे करनी है, फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कैसे करना है, बच्चे वहां पे गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं. सो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन मोमेंट्स. So now let us solve one question. So see, the question is calculate the first 4 central moments. हमें सबसे पहले ये पता करना है क्वेश्चन पढ़ के कि कौन सी मोमेंट्स मांगी है. सेंट्रल मोमेंट्स मांगी है, मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू मांगी है, या मोमेंट्स अबाउट द रीजन मांगा है. सो फर्स्टली वी हैव टू डिसाइड दिस. सो देयर इज अ सेंट्रल मोमेंट. सो मींस द फर्स्ट वन म्यू. वी हैव टू फाइंड μ1, μ2, μ3 and μ4, right? Now इसके बाद तुरंत इसके बाद we will see that which type of series is this, whether it is individual series, whether it is discrete series, or whether it is continuous series. So because we have to choose the formula ना, so formula choose करने के लिए we should be knowing about which type of series is this. As clearly the intervals are given. So intervals किस सीरीज में गिवन होती है? I hope you are answering from the other side. किस सीरीज में गिवन होती है? क्लास इंटरवल्स continuous series. So we have to implement the formula of continuous series. So this question is of continuous series. अब बच्चे, the second thing which I tell my students is to write down the formula. आप सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आप पकड़िए कि कौन सी सीरीज है और उसके बाद उसका फॉर्मूला लिख लीजिए. अब फॉर्मूला लिखने से क्या होगा, फॉर्मूला हमें बताएगा कि क्या करना है अब आगे क्वेश्चन में. वंस यू राइट द फॉर्मूला यू विल गेट टू नो दैट व्हाट आर द फर्दर स्टेप्स वी हैव टू डू टू सॉल्व आवर क्वेश्चन, राइट? सो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज है. कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए मैंने आपको बताया था इन जनरल म्यू आर का बेटा क्या फॉर्मूला होता है, समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर अपॉन समीशन एफ. आई रिक्वेस्ट अगेन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स कि ध्यान से समझिए कि मैं क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रही हूँ, क्योंकि आपकी अप्रोच क्वेश्चन की तरफ बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप मेरी एडवाइस लेंगे, मेरी एडवाइस से मेरी ऑब्जर्वेशन देखेंगे, मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में ये देखा कि क्वेश्चन किसका है, सेंट्रल मूवमेंट का है, मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू क्या है, या मूवमेंट अबाउट ओरिजिन का है. सो सबसे पहले ये डिसाइड किया कि कौन सा है, सेंट्रल मूवमेंट का है. इतना क्लियर हो गया मेरे माइंड में. देन आई हैव टू जज विच टाइप ऑफ सीरीज इज दिस. कौन सी सीरीज है ये भी हमने पता लगा लिया, दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज. थर्ड स्टेप, थर्ड काम मैंने करने के लिए क्या बोला कि तुरंत उसके बाद आप फॉर्मूला लिख लीजिए. अब फॉर्मूला क्या है, म्यू आर इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार रेज टू पावर आर अपॉन समीशन एफ. अब मैंने आपको ये बोला था 3 काम हो गए. क्वेश्चन में पढ़ना, मूवमेंट कौन सी निकालनी है, देन सीरीज कौन सी है, एंड देन टू पुट द फॉर्मूला. अब फॉर्मूला देख के हम लोग ये चूज करेंगे कि सबसे पहले हमें करना क्या है. अब अच्छे से फॉर्मूले को ऑब्जर्व कीजिए. फॉर्मूले में क्या क्या है, जो जो फॉर्मूले में चाहिए, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेंट्रल मूवमेंट्स, सो वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. अब फॉर्मूला में जो जो चीजें निकालनी है वो हम पहले निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले अगर आप देखें, सबसे इजी मुझे ये डिनोमिनेटर लग रहा है. डिनोमिनेटर क्या है, समीशन एफ.
समीशन एफ का मतलब क्या है, एफ की वैल्यूज का टोटल कर लीजिए। ओके, कर लेते हैं। सो एफ इज 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 + 1 19। सो समीशन एफ इज 19। डन। तो मेरा एक तो निकल गया, ये निकल गया। अब चलते हैं न्यूमरेटर की तरफ। न्यूमरेटर में मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले अगर आप देख पाओ एक्स बार पड़ा है। एक्स बार क्या होता है मेरा, अरिथमेटिक मीन। सो जिनको अरिथमेटिक मीन कॉन्टिन्यूस सीरीज में नहीं निकालना आता, वो मेरे चैनल पे वीडियो है, उसे देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया है कि अरिथमेटिक मीन कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, एक्स बार फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज इज समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। अब सबसे पहले मुझे एक्स बार निकालना पड़ेगा, तो एक्स बार के फॉर्मूले में मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या चाहिए। ओके, क्या चाहिए, समीशन एफ जो मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है। देन बच्चे मुझे चाहिए एफ एक्स का समीशन। अच्छा, एक और चीज जो बच्चे गलत करते हैं, क्या बेटा, वो लोग क्या करते हैं, इसको कैसे रीड करते हैं, इट इज समीशन एफ एक्स। वो क्या करेंगे, समीशन एफ जो 19 आया उसको एक्स की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं। इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज समीशन किसका, एफ एक्स का बेटा। सो आपको पहले एफ वाले कॉलम को और एक्स वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उस कॉलम का समीशन लेना है। आई रिपीट, प्लीज ये गलती मत कीजिएगा, समीशन एफ को उठा के एक्स की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको समीशन लेना है एफ एक्स का। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एफ वाले कॉलम को और एक्स वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, फिर उनका समीशन लेना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगी बेटा, कॉलम बनाऊंगी एफ एक्स। अच्छा ओके, फॉर दिस ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है बेटा, एक्स मेरे पास नहीं है। अब x से क्या होता है, x इज द मिडल वैल्यू। वो कैसे आती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, हियर 0 इज द लोअर लिमिट, 2 इज द अपर लिमिट। 0 + 2 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1। नेक्स्ट 2 + 4 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 that is 3। 6 + 4 10, 10 divided by 2 that is 5। 8 + 6 that is 14, 14 divided by 2 that is 7। 10 + 8 18, 18 divided by 2 that is 9। So मेरे पास बेटा x वाला कॉलम भी आ गया। Now I have to find fx। अब मुझे क्या निकालना है, fx। तो fx कैसे आएगा, मल्टीप्लाई, सिंपली मल्टीप्लाई दीज टू कॉलम्स। कैसे, 2 × 1 that is 2, 5 × 3 that is 15, 4 × 5 that is 20, 7 × 7 that is 49, 1 × 9 that is 9। अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। नाउ वी विल टोटल समीशन fx। अब हम देखेंगे समीशन fx करने पे हमारे पास क्या आता है। समीशन fx कीजिए तो आपके पास बेटा आ जाएगा 95, राइट। सो समीशन fx आ गया। नाउ यू कैन कैलकुलेट x बार। x बार विल बी समीशन fx। क्या आया बेटा समीशन fx आपके पास 95, एंड आपके पास समीशन f क्या है 19। सो 19 into 5 is 95। सो आपके पास x बार की वैल्यू रेडी है, दैट इज 5। सो आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। तो हमारे पास आ गया अब x बार, बट अभी ये मेरा मेन काम नहीं था, ये दिस इज द सेकेंडरी जो मुझे चाहिए था अपने मूवमेंट्स को निकालने के लिए। अब हम मूवमेंट्स निकालते हैं। सो मुझे 4 मूवमेंट्स निकालनी है, फर्स्ट मूवमेंट, सेकेंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट एंड फोर्थ मूवमेंट। उसके लिए मुझे फॉर्मूले में r की जगह क्या पुट करना है 1। फॉर्मूला क्या था, μr इज समीशन f x माइनस x बार रेज टू पावर r अपॉन समीशन f। बट फॉर फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट, फॉर फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट दैट इज μ1,
वो तो हमें पता ही है बेटा, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस में μ1 निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन μ1 का आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो आई कैन राइट स्ट्रेट वे μ1 इज इक्वल टू 0 ऑलवेज, नो नीड टू कैलकुलेट, राइट। Then move to the second central moment. For second central moment मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। μ2 r की जगह 2 पुट करो, क्या आ जाएगा, समीशन f x माइनस एक्स बार रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय समीशन f। अब इसके फॉर्मूले में क्या क्या जरूरी है मेरे लिए निकालना, वो मैं निकाल लेती हूँ। समीशन f ऑलरेडी पड़ा है मेरे पास। अब मुझे समीशन किसका निकालना है, f मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम x माइनस एक्स बार रेज टू पावर 2। सो सबसे पहले आई हैव टू जनरेट द कॉलम x माइनस एक्स बार रेज टू पावर 2। सो लेट अस जनरेट दिस कॉलम, वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, सो फर्स्टली आई विल मेक द कॉलम x माइनस एक्स बार, फिर मैं जो भी वैल्यूज आएंगी उनको क्या कर दूंगी, स्क्वायर, x माइनस एक्स बार की पावर 2 कर दूंगी, राइट। सो x माइनस एक्स बार देखना, ध्यान से प्लीज चेक करना कि क्या करना है। हर x की वैल्यू में से क्या माइनस करना है, x बार। x बार मेरे पास क्या आया था, 5। x बार मेरे पास बेटा क्या आया था, 5। x की वैल्यूज पकड़ते हैं, 1 माइनस 5, इधर मैं शो कर रही हूँ आपको, यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं होती है। 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4। तो हियर यू कैन राइट स्ट्रेट अवे माइनस 4। 3 minus 5, 3 minus 5 that is minus 2. 5 minus 5, 5 minus 5 that is 0. 7 minus 5, 7 minus 5 that is that is 2. 9 minus 5, 9 minus 5 that is 4, right? तो बट आई वॉन्ट द स्क्वायर ऑफ दीज वैल्यूज, सो आई कैन फाइंड माइनस 4 का स्क्वायर इज 16, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 0 स्क्वायर 0, 2 स्क्वायर इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16। अच्छा, अब वो मैं आपको प्रॉपर्टी भी शो करके दिखाऊं, जो मैं बोल रही थी कि अरिथमेटिक मीन क्या कहता है, कि अगर आप मुझे, मतलब अरिथमेटिक मीन कहता है कि अगर आप मुझे दैट इज अरिथमेटिक मीन को उसकी वैल्यूज, उसके डाटा वैल्यूज दैट इज एक्स की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करोगे और टोटल करोगे, आंसर हमेशा 0 आएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, सी माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, माइनस 6 प्लस 0 माइनस 6, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 एंड माइनस 4 प्लस 4 0। सो कोई भी क्वेश्चन हो, आपका समीशन x माइनस एक्स बार हमेशा क्या आने वाला है, 0। इसलिए हमें μ1 निकालने की जरूरत ही नहीं होती है, μ1 हमेशा क्या आएगा मेरा, 0 आएगा, राइट। ओके, सो ये x माइनस एक्स बार हो गया। अब इसका समीशन नहीं चाहिए, ध्यान से देखो, मुझे इसका समीशन नहीं चाहिए। पहले मुझे इस वाले कॉलम को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, f वाले कॉलम के साथ। मुझे इस वाले कॉलम को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, f वाले कॉलम के साथ। सो लेट अस बिगिन। Now we will calculate f into x minus x bar स्क्वायर। सो अब क्या करना है बेटा, हमें बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये वाले कॉलम को, f वाले कॉलम को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है x माइनस एक्स बार स्क्वायर वाले कॉलम के साथ। तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 32, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 20, 4 multiply by 0 that is 0, 7 multiply by 4 that is 28, 1 multiply by 16 that is 16। अब मुझे इसका निकालना है समीशन, समीशन f x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो टोटल कर लीजिए बेटा इसका टोटल करने पे हमारे पास बेटा आएगा 96, राइट। अब हम इजीली μ2 निकाल सकते हैं। μ1 तो हमारा आया था 0, μ2 का फॉर्मूला हमने बनाया था समीशन
x माइनस एक्स बार f2 अपॉन समीशन f। इस फॉर्मूले में बेटा पुट कर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समीशन f x माइनस एक्स बार की पावर 2 दैट इज 96 एंड व्हाट इज समीशन f दैट इज 19। आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास बेटा μ2 का आंसर आ जाएगा 5.05। पुट इट इन अ बॉक्स, राइट। तो मेरी 2 सेंट्रल मूवमेंट्स निकल गई हैं। अब बारी है तीसरी सेंट्रल मूवमेंट निकालने की। तीसरी सेंट्रल मूवमेंट के लिए फॉर्मूला विल बी μ3 विल बी समीशन f x माइनस एक्स बार की पावर 3 डिवाइडेड बाय समीशन f, राइट। अब इसकी मदद से हम निकालेंगे थर्ड सेंट्रल मूवमेंट। अब थर्ड सेंट्रल मूवमेंट बेटा कैसे निकलेगी? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। समीशन f मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है। व्हाट एल्स आई नीड x माइनस एक्स बार की पावर 3। अब देखो मैंने x माइनस एक्स बार की पावर 2 तो निकाली हुई है। अब x माइनस एक्स बार की पावर 2 को जब मैं x माइनस एक्स बार की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास x माइनस एक्स बार की पावर कितनी आ जाएगी? 3। क्योंकि आपने एक्सपोनेंट रूल आपको पता होगा, बेसिस सेम पावर्स ऐड। अब यहाँ पे इसकी पावर क्या है? 1। तो जब आप इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बेटा? x माइनस एक्स बार की पावर 3। तो करो मल्टीप्लाई बेटा। 16 इंटू माइनस 4 डेट इज माइनस 64। 4 इंटू माइनस 2 डेट इज माइनस 8। 0 इंटू 0 डेट इज 0। 4 2 जा 8। 16 इंटू 4 64। बट अगेन मुझे इसका समीशन करके कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे समीशन किसका चाहिए? f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब। तो अब मुझे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। कौन सा? f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब। अब f वाला कॉलम अगेन पकड़ते हैं बेटा। f वाला कॉलम हमारा ये वाला और इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे ये वाले कॉलम से। मैं ऊपर भी टिक लगा देती होती हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो, मैं गलती से कोई और टेबल की वैल्यू मल्टीप्लाई ना कर दूं। सो minus 64 into 2 it will be minus 128 minus 8 into 5 minus 40 4 into 0 0 8 into 7 56 64 into 1 64. Now I have to calculate the total of this, and when you will do the total summation f x minus x bar की power 3 it comes out to be minus 48. जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? minus 48. Now put it in the formula. It will be what is the value of summation f x minus x bar की power cube? It is minus 48. और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 19 के साथ आपकी बेटा μ3 की वैल्यू आ जाएगी minus 2.53 minus 2.53, राइट। अब मैं अगर आपको याद हो स्टार्टिंग वाला पार्ट मैंने उसमें आपको बताया था कि μ2 रिफ्लेक्ट करता है वेरिएंस को, μ3 बताता है बेटा हमारे पास क्यूनेस के बारे में, मतलब वेदर आर कर्व इज सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। अब यहाँ पे आई है बेटा नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव का मतलब क्या है? अगर आपने ग्राफ भी देखा हो, ग्राफ में क्या होता है, दिस इज ओरिजिन, ये वाला लेफ्ट वाला साइड क्या होता है मेरा? नेगेटिव। नंबर लाइन अगर आपने देखी हो कभी, ये 0 होता है मेरा, और ये वाली साइड मेरी क्या होती है? पॉजिटिव। हमारी μ3 की वैल्यू क्या निकल के आई है? माइनस। तो इफ योर μ3 वैल्यू इज नेगेटिव तो आप क्या ये पता कर सकते हैं? तो आप ये बोल सकते हैं कि जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो लेफ्ट की तरफ ज्यादा है, राइट। वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट सिमेट्रिकल नहीं है, इट इज मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट। जैसे कि ऐसे तुम्हारी जो कर्व है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है बेटा, वो इस तरह से कुछ बनी है, इस तरह से, मतलब द टेल ऑफ द कर्व इज मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ ज्यादा है। μ3 नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इट इज नेगेटिवली स्क्यूड। जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? नेगेटिवली
स्क्यूड है, राइट? ओके, सो द लास्ट इज μ4। μ4 बेटा कैसे निकलेगा? समीशन f x माइनस एक्स बार रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय समीशन f। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास x माइनस एक्स बार क्यूब वाला कॉलम है, इसके दो वेज है। यहाँ तो बेटा आप x माइनस एक्स बार क्यूब वाले कॉलम को अगेन x माइनस एक्स बार की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करवाने पे आपके पास कौन सा कॉलम आ जाएगा? x माइनस एक्स बार रेज टू पावर 4। और दूसरा वे क्या है कि आप ये x माइनस एक्स बार स्क्वायर वाला कॉलम आपको दिख रहा है, x माइनस एक्स बार स्क्वायर वाले कॉलम का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि जब इसका आप दोबारा से स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास पावर क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो मैं ये वाला वे कर रही हूँ, आप चाहे ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई करवा दो या आप इसी का स्क्वायर कर दो, यू कैन चूज ईदर ऑफ द टू वेज। तो नाउ वी विल कैलकुलेट समीशन x माइनस एक्स बार की पावर 4। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? x माइनस एक्स बार स्क्वायर वाले कॉलम का दोबारा से क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? पावर 4 आ जाएगी, राइट? सो 16 का स्क्वायर इज 256, 4 का स्क्वायर इज 16, 0 का स्क्वायर इज 0, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 का स्क्वायर इज 256। लेट मी चेक। वैसे 16 स्क्वायर 6 36, 9 1 6 6 1 या इट विल बी 256, राइट? अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए f के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन। तो करवा देते हैं बेटा, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4। अगेन मुझे अब f वाले कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करवाना है बेटा? x माइनस एक्स बार की पावर 4 के साथ, राइट? सो सबसे पहले क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 256, 256 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। 6 2 12, 5 2 10 11, 2 2 4 5, it will be 5 1 2। then 5 into 16, 16 into 5 क्या होता है बेटा? 80, 4 into 0 0, 16 into 7, 16 into 7 is 112 and 1 into 256 is 256। और जब आप इसका बेटा समीशन करेंगे x माइनस एक्स बार की पावर 4 करेंगे तो आपके पास राज्य आ जाएगा 960, 960, राइट? तो अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या था मेरा? समीशन f x माइनस एक्स बार की पावर 4 अपॉन समीशन f। सो मेरा ये कितना है? 960 और समीशन f बेटा मेरा क्या था? 90। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा μ4 का 50.53। तो आपका बेटा μ4 निकल के आया 50.53, राइट? अब अगर आपको याद हो कि मैंने बताया था μ4 किसकी रिप्रेजेंटेशन आपको देता है? कर्टिसिस की। कर्टिसिस के बारे में बताता है कि वेदर योर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज हाईली पीक, वेदर योर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज लेस पीक्ड और फ्लैट। तो यहाँ पे हमारा μ4 का आंसर क्या आया है? पॉजिटिव। सो μ4 अगर आपका पॉजिटिव आता है तो यू कैन से दैट माय कर्व मतलब आवर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज हाईली पीक्ड। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो हाईली पीक्ड है, राइट? सो फाइनल आंसर्स हमारे ऑलरेडी बॉक्स में है। μ1 इज 0, μ2 इज 5.05, μ3 is 2.53 and μ4 is 50.53। तो हम अपने इस क्वेश्चन के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में क्या बता सकते हैं कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो नेगेटिवली स्क्यूड है, लेफ्ट की तरफ ज्यादा है, क्योंकि μ3 की वैल्यू क्या आई है? नेगेटिव। और ये हाईली पीक्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना रही है क्योंकि μ4 की वैल्यू मेरी क्या आई है? पॉजिटिव। So I hope it is clear to everyone that how to solve the question of central moment,
राइट। तो यहाँ पे हमने 4 सेंट्रल मोमेंट्स निकाली है, μ1, μ2, μ3, μ4। ये क्वेश्चन मैंने करवाया कॉन्टिन्यूस सीरीज का। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा बेटा, डिस्क्रीट सीरीज में ये वाला पार्ट नहीं होता, आपके पास सीधा f और x की वैल्यूज होती है। यहाँ पे एक हमारा काम बढ़ गया था, कौन सा, कि मुझे x की वैल्यूज भी निकालनी पड़ी, बट इन द डिस्क्रीट सीरीज आपको x की वैल्यूज दे रखी होती हैं। देन ऑल्सो द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन द सेम वे, राइट। अब इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला बस दूसरा लग जाएगा, इंडिविजुअल सीरीज वाला, उसमें आपके पास f और ci नहीं होता, सिर्फ x होता है, और x के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में इंप्लीमेंट कर दीजिए। और फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना ही सिर्फ मेन खेल है इसमें, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करना है। और जो मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई, छोटी छोटी ट्रिक्स बताई, वो क्या, कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए किसका है, सेंट्रल मूवमेंट का है, आर्बिट्रेरी मूवमेंट्स का है, या ओरिजिन मूवमेंट का है, राइट। तो ये सेंट्रल मूवमेंट का क्वेश्चन था। फिर मैंने सीरीज पकड़ी कि सीरीज कौन सी है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का। फिर मैंने उसका फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले लगाने के बाद मैंने ये सोचा कि अब मुझे करना क्या है। जैसे जैसे फॉर्मूले में चीजों की रिक्वायरमेंट थी, मैंने वो चीजें फाइंड करती थी। जैसे ये इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ा, तो उसके लिए भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन यूजिंग कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला लगाया हमने x बार का, दैट इज समीशन fx अपॉन समीशन f, जहां से मेरे पास x बार की वैल्यू क्या आ गई थी बेटा, 5 आ गई थी। देन वी हैव begin with our sum, that is we have calculated x minus x bar, then square, then x की power 3, then x की power 4, and continuing like this we got all the 4 central movements μ1, μ2, μ3 and μ4, right। so इसके क्वेश्चन के बीच में मैंने आपको थोड़ा सा स्क्यूनेस और थोड़ा सा कर्टिसिस के बारे में भी बता दिया, बट उसके लिए स्क्यूनेस और कर्टिसिस के लिए हम एक अलग वीडियो भी पोस्ट करेंगे जिसमें आपको स्क्यूनेस और कर्टिसिस के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, राइट। सो आई होप यू विल लाइक आवर वीडियो एंड देयर विल बी नो कंफ्यूजन इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ मूवमेंट्स। मैंने सेंट्रल मूवमेंट डिस्कस किया है, बट सेम वे बेटा आप मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर इफ यू गेट द क्वेश्चन अबाउट मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, so sometimes the value is given in the question कि find the movement about for example 120, 130 according to the question, वो दे देंगे कि किसके अराउंड वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पे हम x माइनस एक्स बार कर रहे थे, वहां पे आप क्या करेंगे, x माइनस द वैल्यू विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। इन केस द वैल्यू इज नॉट गिवन, यू कैन सपोज एनी वैल्यू ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ x, बट सजेस्ट ये किया जाता है कि आप मिडिल वैल्यू को चूज कर लीजिए, राइट, टू गेट द परफेक्ट आंसर, right। so I hope this is clear to you। so in case you have any doubt you can drop your comments and we will reply to your queries, and you can tell me about the next topic जिस पे आप वीडियो चाहते हो। any class, आप 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, BTech, BCA, BBA, BCom, BSc, कुछ भी किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो यू कैन कमेंट योर क्वेरीज, यू कैन कमेंट योर टॉपिक, तो हम जल्द से जल्द उस टॉपिक पे भी वीडियोस बनाएंगे। सो आई होप यू विल लाइक आवर वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हम इस चैनल पे वीडियोस डालें वो आप तक पहुंचती रहे। सो we will see you in the next video. Thank you. Bye bye. Take